ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں کے قریب ایک جنگل میں ایک ایسا جادوئی درخت تھا جس سے دودھ نکلتا تھا۔ وہ دودھ ایک دریا کی شکل میں ایک غار تک جاتا تھا، مگر اس غار میں ایسا کیا تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا ایک لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ بٹو ایک شکاری تھا اور جنگل میں پرندوں کا شکار کر کے ان کا گوشت بنا کر کھایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ابو جان آج بٹو کگی کا شکار کر کے آئے ہیں، امی جان اسی کا گوشت بنا رہی ہیں۔ واہ واہ، کگی کا گوشت کھائے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، آج اس کے گوشت سے لطف اندوز ہوگے۔ جی ابو جان، آج میں کگی اسپیشل آپ کے لیے شکار کر کے آیا ہوں۔ آپ کو کافی کمزوری ہو رہی ہے، اس لیے آپ یہ کھائیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے۔ ارے بیٹا، کیا تو انہیں اس عمر میں طاقتور چیزیں کھلا رہا ہے؟ انہوں نے کون سی کبڈی کا مقابلہ لڑنا ہے اس عمر میں؟ امی جان کھانے دے ابو جان کو طاقتور چیزیں، آخر آپ دونوں کو اس عمر میں طاقتور چیزیں کھلانا میرا فرض ہے، مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو۔ بیٹا، مجھے مرغابی کا گوشت بہت پسند ہے، اس بار تو مجھے مرغابی کا گوشت کھلا۔ جی ابو جان، آپ فکر مت کریں، میں اس بار آپ کو مرغابی کا شکار کیا ہوا گوشت کھلاؤں گا۔ اسی گاؤں میں میٹھے نام کا ایک آدمی اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھی پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا، لیکن جہاں وہ شکار کرتا تھا وہاں بہت ہی کم پرندے تھے۔ ارے کیا مسئلہ ہے؟ آج تو صبح سے شام ہو گئی، کوئی پرندہ ہی نہیں ملا، لگتا ہے آج خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ میٹھا تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے ایک تیتر نظر آتا ہے۔ ارے واہ تیتر، آج تو مزہ آ جائے گا تیتر کا شکار کرنے کا، لیکن یہ تیتر تو اکیلا میری ساس ہی کھا جائے گی۔ کوئی نہیں، ساسو ماں کے لیے کوئی اور مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میٹھا بندوق چلا کر تیتر کا شکار کر لیتا ہے۔ چلو جی، تیتر کا شکار تو ہو گیا، اب اپنی ساسو ماں کے لیے گوشت کا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں۔ میٹھا تھوڑا آگے آتا ہے تو اسے ایک کوا نظر آتا ہے۔ مل گیا، اپنی ساسو ماں کے لیے گوشت مل گیا۔ میٹھا اس کوے کو مار دیتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کا گوشت بنا کر گھر پہنچ جاتا ہے۔ دیکھ بیگم، آج تیتر اور مرغابی دونوں کا شکار کر کے آیا ہوں، تو ایک کام کر، دونوں کو الگ الگ ہانڈی میں بنا۔ ارے میٹھے، الگ الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کو ایک ہی ہانڈی میں بناتے ہیں، تیتر اور مرغابی مل کر ایسا ذائقہ بنائے گی کہ مزہ آ جائے گا۔ ارے نہیں ساسو ماں، تیتر ہوائی پرندہ ہے اور مرغابی سمندری، دونوں ملیں گے تو ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ بیگم، یہ تیتر کا گوشت ہے، یہ تو الگ ہانڈی میں بنا، اور یہ مرغابی کا گوشت ہے، اسے الگ ہانڈی میں بنا۔ آج ساسو ماں کو مرغابی کا گوشت کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے میٹھے، بھی بڑھاتی ہوں۔ پھر نصیبو الگ الگ ہانڈی بنانے لگ جاتی ہے۔ میٹھے کو بڑی فکر ہو رہی ہے اپنی ساسو ماں کو مرغابی کا گوشت کھلانے کا، کر رہے میں ایسا نہیں ہونے دے دوں گی، مرغابی کا گوشت تو میں ہی کھا دوں گی اور تیتر کا گوشت امی جان کو کھلا دوں گی۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو نصیبو تیتر کا گوشت لے کر اپنی ماں کے پاس آتی ہے۔ یہ لو امی جان، کھانا تیار ہو گیا، کھا لے بو۔ نصیبو لا دے، آج تو مرغابی کا گوشت کھا کر مزہ آ جائے گا۔ ہاں ہاں امی جان، مرغابی کا گوشت تنو توڑ کے کھا بو۔ وہ اسے کھانا دے کر چلی جاتی ہے اور وہ دونوں کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ او بیگم، ساسو ماں کو مرغابی کا گوشت ہی دیا ہے نا؟ ہاں ہاں میٹھے، میں نے انہیں مرغابی کا گوشت ہی دیا ہے، یہ تیتر کا گوشت ہے، ہم دونوں مل کے تنو کے کھاتے ہیں۔ وہ دونوں کھانے لگ جاتے ہیں اور گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ میٹھے، مزہ آ گیا، کاکا کاکا کاکا۔ ارے بیگم، تیری آواز کو کیا ہو گیا؟ کا 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 میٹھے، تو نے مجھے کاکا کاکا کھلا دیا۔ اور تجھے کس نے کہا تھا تو کا 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 کا، اور مجھے بھی کا 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 گوشت کھلا۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ دونوں سو جاتے ہیں اور صبح تک گوشت کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ میٹھے، کل تو نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، میری ماں کو کوا کھلا رہا
रहा था। अगर मैं उन्हें बता देबू तो वो तुझे मार मार के कब्बा बढ़ा देगी। अरे बेगम सासू माँ को बताने की जरूरत नहीं है, तू फिक्र मत कर। मैं आज दूसरे जंगल में जाता हूँ और तुम्हें बत्तख का गोश्त लाकर खिलाता हूँ। ठीक है मीठे, आज बत्तख का गोश्त लेके आबियो, कब्बा ना लेके आबियो। फिर मीठा घर से निकल जाता है और दरिया के रास्ते बत्तख को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बत्तख की तलाश में इतना आगे आ जाता है कि वो उस जादुई दूध के दरख्त तक पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये कैसा दरख्त है, इसमें से तो दूध निकल रहा है। मेरे तो मजे हो गए। अब तो मैं शिकार को गोली मारूंगा और यहाँ से दूध ले जाकर बाजार में बेचा करूँगा। मगर एक मिनट, ये दूध की नहर आखिर जा कहाँ रही है? मैं ऐसा करता हूँ, जाकर देखता हूँ। मीठा उस नहर की सिमत में चल पड़ता है तो देखता है कि वो नहर एक गुफा में जा रही है। अरे ये तो बहुत अजीब है, ये दूध की नहर तो गुफा में जा रही है, मगर इस गुफा के अंदर क्या है, मुझे अंदर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मीठा जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अब मीठे के साथ उस गुफा में क्या हुआ ये वही बता सकता है जो उस गुफा से सही सलामत बच जाए। रात हो जाती है। नसीबो और उसकी माँ मीठे का इंतजार करते करते थक जाते हैं। अरे अम्मी जान, मीठा बत्तख का शिकार करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। बेटा काम करते हैं, जंगल में जाकर मीठे को ढूंढता। नहीं अम्मी जान, इस वक्त तो जंगल में जंगली जानवर होंगे, वो हमें खा जाएंगे। मैं बिट्टू के पास जाती हूँ, वो भी जंगल में शिकार खेलता है, उससे बात करके आती हूँ। ये कहकर नसीबो घर से निकलती है और बिट्टू के घर आ जाती है। बिट्टू मेरा भाई, मेरा मीठा जंगल में बत्तख का शिकार करने गया था, रात हो गई मगर अभी तक वापस नहीं आया। तो हम क्या करें? तुमने तो सारी जिंदगी मेरे बेटे को तंग किया है, इसकी दुकान को आग लगा दी, यहाँ तक कि मेरा बेटा शिकार करने पर मजबूर हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ। नहीं अब्बू जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे मीठे भाई की मदद करनी होगी। मैं सुबह होते ही जंगल जाकर मीठे भाई को ढूंढूंगा। ठीक है बेटे, मैं इंतजार कर बेबूंगी, तो मेरे मीठे को वापस लेके आ जा पियो। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है। बेटा तूने हमें क्यों भरी? देखा नहीं मीठे ने सारी जिंदगी हमें कितना तंग किया है। अब्बू जान कोई बात नहीं, अगर हम किसी का भला करेंगे तो अल्लाह हमारा भला करेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू मीठे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में हर जगह मीठे को ढूंढता है लेकिन मीठा उसे कहीं नहीं मिलता। वो सफर जारी रखता है और आखिरकार वो उस जादुई दरख्त तक पहुंच जाता है। बिट्टू वो दरख्त देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, ये तो बहुत अजीब दरख्त है और इसमें से दूध निकल रहा है और यहाँ तो दूध की नहर भी बह रही है। बिट्टू उस नहर के सिमत में चल पड़ता है तो देखता है कि वो नहर एक गुफा में जा रही है। यार यहाँ तो एक गुफा भी है, मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। बिट्टू कुछ सोचे समझे बगैर उस गुफा के अंदर चला जाता है तो क्या देखता है कि अंदर मीठे का सर धड़ से अलग दरख्त पर लटका हुआ होता है। बिट्टू ये देखकर डर जाता है। बिट्टू मेरे भाई मुझे बचाओ, जिनने मेरा सर धड़ से अलग करके दरख्त से बांध दिया है। मीठे भाई फिर आप जिंदा कैसे हो? बिट्टू वो जिन बहुत बड़ा जादूगर है और उसने जादू से ही मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। अगर उसे खत्म न किया तो वो पूरे गांव वालों के सर धड़ से अलग कर देगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मगर मीठे भाई उसे खत्म कैसे किया जाए? बिट्टू मेरे भाई ये मुझे नहीं पता, वो आने वाला होगा, तुम उसके आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। बिट्टू देखता है कि वहाँ पर कुछ बोरियां पड़ी होती हैं। मीठे भाई आप फिक्र मत करो, मैं बोरियों के पीछे छुप जाता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ। बिट्टू उन बोरियों के पीछे छुप जाता है और कुछ देर बाद वो जिन वहाँ पर आ जाता है। ये क्या, मुझे यहाँ किसी इंसान की बदबू आ रही है? तो जिन भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कौन सा लक्कड़ का बांदर हूँ? अरे हाँ तू इंसान ही तो है और ये तेरी ही बदबू है, मैं तो भूल ही गया था। जिन भाई बादाम खाया करो, लगता है आपका दिमाग काफी कमजोर हो गया है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी जान किस में है। इतना भी मेरा दिमाग कमजोर
कमजोर नहीं है, मुझे सब याद है। मेरी जान नागासाकी के पहाड़ों में मौजूद एक गुफा में मिट्टी की मूर्ति में है और वहाँ तक मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। जिन भाई, अगर उस मूर्ति को जाकर किसी ने चोरी कर लिया तो आप तो मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। तू फिक्र न कर मेरी, अगर उसे कोई उठाकर भी ले गया तो जब तक वो उस मूर्ति को दूध की नदी में नहीं फेंकेगा उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उस गुफा की हिफाजत मेरा एक बाज कर रहा है। अरे यार, मीठे भाई तो बहुत तेज निकला, बातों बातों में उससे सारी बातें उगलवा ली। एक बात सुन, कल मैं तुझे तेरे जिस्म से जोड़कर उस दूध की नदी में फेंक दूंगा, फिर तुम सब लोगों के सर उनके धड़ से अलग हो जाएंगे। कल तेरी बलि देने से मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। अरे इसका मतलब इसने मीठे भाई को इसलिए पकड़ा है ताकि उसकी बलि से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। मुझे जल्दी जल्दी उस मूर्ति तक पहुंचना होगा। मीठे, मैं दूध की नदी में नहाने जा रहा हूँ, अब तू कल मरने के लिए तैयार नहीं। ये कहकर वो जिन गुफा से बाहर चला जाता है और बिट्टू बोरियों के पीछे से निकल आता है। मीठे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा वो गुफा कहाँ पर है। बिट्टू, मैंने कल उससे सुना था कि जब वो दूध की नहर में नहाता है तो उसका बाज दरख्त पर बैठकर उसकी हिफाजत करता है और जब वो नहाकर गायब हो जाता है तो वो बाज उड़कर वापस मूर्ति की हिफाजत करने चला जाता है। इसका मतलब जब वो बाज उड़कर जाए तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊं और उस गुफा तक पहुंच जाऊं। हाँ बिट्टू, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, बस मुझे बचा लो। बिट्टू गुफा के पास छुपकर देखता है तो वो जिन उस दूध की नहर में नहा रहा होता है और वो बाज दरख्त पर बैठा होता है। जिन नहर से निकलकर गायब हो जाता है और वो बाज उड़ जाता है तो बिट्टू उसका पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे जाता रहता है यहाँ तक कि उस गुफा तक पहुँच जाता है। बाज उस गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये है वो गुफा। इस बाज का तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ, बहुत अपने मालिक को जाकर खबरें देता है। बिट्टू उस गुफा के अंदर चला जाता है तो वहाँ वो मूर्ति पड़ी होती है और बाज उसके ऊपर बैठा होता है। बिट्टू बंदूक से एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। शुक्र है इस बात से तो जान छूटी। अब इस मूर्ति को उठाकर ले जाता हूँ और जैसे ही कल वो जिन मीठे भाई का सर जोड़ेगा इस मूर्ति को दूध की नहर में फेंक दूंगा। बिट्टू उस मूर्ति को उठाकर वहाँ से ले जाता है और गांव पहुंचकर सब गांव वालों को बता देता है कि किस तरह वो कल जिन सब गांव वालों को मार देगा। बेटा, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। बिट्टू मेरे भाई, अब हम सब गाँव वालों की जिंदगी तेरे हाथ में है। तू मेरे मिट्टे को बलि से बचाकर सब गाँव वालों को मरने से बचा ले। हाँ नसीबो बाजी, मैं ये मूर्ति अपनी जान पर खेल कर लेकर आया हूँ। अब कल मैं उस जिन का काम तमाम करूँगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो सब गांव वाले बिट्टू को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। बिट्टू वो मूर्ति लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। शुक्र है बिट्टू, तुम मूर्ति लेकर आ गए हो, वरना आज तो मेरी और पूरे गांव वालों की मौत पक्की थी। मीठे भाई, मैं दूध की नहर के पास छुप जाता हूँ। जैसे ही वो आपको नहर में फेंकेगा मैं उससे पहले ये मूर्ति नहर में फेंक दूंगा। ठीक है बिट्टू, जाओ, वो आने वाला होगा। बिट्टू जैसे ही गुफा से बाहर जाता है वो जिन आ जाता है। चल मीठे, तैयार हो जा, आज मैं तुझे नदी में फेंक कर बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। वो मंत्र पढ़ता है और मीठे का मुंह उसके जिस्म से जुड़ जाता है और वो उसे उठाकर गुफा से बाहर ले आता है। वो जैसे ही मीठे को नहर में फेंकने लगता है बिट्टू वो मूर्ति फेंक देता है। मूर्ति फेंकते ही उसे आग लग जाती है। ये तूने क्या किया? तू मेरी मूर्ति कैसे ले आया? वो जिन जलकर भस्म हो जाता है। फिर बिट्टू मीठे को लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और इस तरह पूरे गांव वाले मरने से बच जाते हैं।